Hello students, good morning. Today we will discuss ratio and proportion. तो आज का टॉपिक है हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन. हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से दो क्वांटिटीज़ को रेशियो फाइंड आउट किया जाता है और अगर वो प्रोपोर्शनल हैं तो किन कंडीशन पे उन रेशियोज़ को हम लोग प्रोपोर्शनलिटी शो करते हैं. तो द रेशियो ए इज टू बी इज द फ्रैक्शन ए अपॉन बी दैट इज रिटन एज ए रेशियोज बी. अगर कोई भी दो क्वांटिटीज हैं और वी नीड टू फाइंड आउट देयर रेशियोज, तो फॉर फाइंडिंग द रेशियोज ऑफ एनी टू क्वांटिटीज मस्ट बी नेसेसरी कि वी विल फर्स्टली मेक देम एज सेम यूनिट, मतलब उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए. सो द रेशियो इज यूनिटलेस. रेशियो की कोई भी यूनिट नहीं होती है. रेशियो इज यूनिटलेस. Now what's about the proportion? Suppose that A, B, C and D. A, B, C and D are in proportion. If they are in proportion, so it can be written as A ratio B proportion to C ratio D. This is a symbol of proportion. A ratio B proportion to A ratio D. Means A upon B is equals to C upon D. These are equivalent fraction. Okay. Now these two terms are called mean terms. And this is called extreme. The condition is that the product of extreme is equals to product of mean. If A, B, C and D, these four numbers are in proportion, then we can write down this product of extreme. Product of extreme is equals to product of mean. Yani A cross D is equals to B cross C. This is according to proportionality. If two ratios are in proportion, then this condition will verified. If any two ratios verified this condition, it means that the given ratios are in proportion. Next is unitary method. Unitary method is the method in which the value of unit quantity is first derived to find the value of any required quantity. Sometimes we see that the cost of more than one object is given, and we need to find out the cost of a single object, or more than one object. On that time, firstly we will find the cost of an object. यानी one object की cost find out कर लीजिए. After finding the cost of one object, we can find out much more. As the cost of 5 pence is rupees 100. And questions demand you find the cost of such 4 pence. 10 पेन की कॉस्ट, 5 पेन की कॉस्ट हमको गिवन है और 4 पेन की कॉस्ट हमको फाइंड आउट करनी है. फॉर दैट फर्स्टली वी विल फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ 1 पेन. कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल्स टू 100 over 5 is equals to rupees 20. So the cost of 1 pen is rupees 20. Hence the cost of such 4 pens is equals to 20 multiplied by 4 is equals to 80. Now clear? Now the next topic is fraction to percentage and percentage to fraction. किस तरह से हम किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं. Now let's see. Suppose that 3 upon 5 is a fraction. This is a fraction and we need to change it into percentage. So it should be multiplied by 100. Then 5 2s are 10, 0, 2 3s are 6, becomes 60%. So for conversions of fraction to percentage, the fraction will multiplied by 100. अगर किसी भी फ्रैक्शन को आप 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो द प्रोडक्ट इज इन परसेंटेज. सिमिलर सपोज कर लीजिए here is 40%. 40% is given and we need to change percentage to the fraction. So this percentage will divided by 100.
both are cancel out, 2 2s are 2 5s are becomes 2/5. These are the two ways for conversions of percentage to fraction and fraction to percentage. फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई एंड परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से डिवाइड, ये दो कन्वर्जन हुए. नेक्स्ट टॉपिक, इंक्रीज इन परसेंट एंड डिक्रीज इन परसेंट. समटाइम वी सी दैट द कॉस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट immediately either increases or decreases. Suppose that the cost of petrol today is rupees 80 rupees per liter, and the tomorrow when we see the cost of petrol it will be 70 rupees per liter. Means that the cost of petrol is decreases rupees 10. 10 रुपये पेट्रोल की कॉस्ट कम हो गई. या फिर कोई भी और ऑब्जेक्ट ले लें, द कॉस्ट ऑफ एन ओनियन पर के जी रुपीज़ 40. मान लीजिए 40 रुपये किलो ओनियन है, कल हमने उसके रेट कंफर्म किए तो उसका रेट 50 रुपये हो गया, यानी उसका रेट बढ़ गया. तो कई ऐसे केसेस होते हैं जब कॉस्ट बढ़ जाती है या घट जाती है, तो हम लोगों को एक्चुअल इंक्रीज इन परसेंट या फिर एक्चुअल डिक्रीज इन परसेंटेज अगर फाइंड आउट करना है तो उसका कंडीशन होता है इंक्रीज इन परसेंटेज इज इक्वल टू एक्चुअल इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल मल्टीप्लाइड बाई 100. जैसे पेट्रोल की कॉस्ट थी या ओनियन की कॉस्ट थी, ओनियन की कॉस्ट 40 रुपीज़ थी और ये बढ़ करके कितनी हो गई 50, यानी जो एक्चुअल इंक्रीजमेंट हुआ वो 10 रुपये का हुआ, 10 रुपीज़ का. और जो कॉस्ट ऑफ ओनियन थी वो कितनी थी 40 मल्टीप्लाइड बाई 100. जीरो कैंसिल आउट हुआ, इट बिकम्स 25%. यानी ईजिली कहा जा सकता है कि ओनियंस की जो कॉस्ट है वो 25% बढ़ गई. इसी तरीके से डिक्रीज इन परसेंट is equals to actual decrease upon original cost multiplied by 100. पेट्रोल की कॉस्ट कितनी थी 80 रुपीज़, जो घट करके कितनी हो गई 70. एक्चुअल डिक्रीज कितना हुआ 10 रुपये का. ओरिजिनल कॉस्ट 80 मल्टीप्लाइड बाई 100. तो दिस इज द वे फॉर फाइंडिंग द एक्चुअल इंक्रीज इन परसेंट or decrease in percent. Clear? Next topic is profit and loss. Profit and loss is depend upon the cost price and selling price of the object. कभी कभी हम दुकानदार जब कोई सामान परचेज करके लाता है तो उस सामान को उसका जो फैक्ट होता है इस बात के लिए एफर्ट्स होता है कि वो उसको कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा का बेचे. कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा का बेचे यानी उसको एक प्रॉफिट यानी गेन करना है. ये कब पॉसिबल है? जब भी कभी हमारी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो. अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है तो ऐसी कंडीशन पर हमको गेन होता है यानी प्रॉफिट. गेन या प्रॉफिट, दीज आर द सेम वर्ड्स. तो प्रॉफिट हो या गेन हो इज इक्वल टू SP माइनस CP, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. जितने रुपए का वो ऑब्जेक्ट बेचा गया और जितने रुपए का वो ऑब्जेक्ट खरीदा गया, तो सेलिंग प्राइस माइनस ऑफ कॉस्ट प्राइस. कुछ केसेस ऐसे आ जाते हैं कभी कभी कि दुकानदार को जितने रुपए की वो ऑब्जेक्ट खरीदता है उससे कम पर बेचना पड़ता है. ऐसा कब होता है? कई ऐसे केसेस होते हैं जैसे रोटन आइटम्स है, ब्रोकन आइटम है, टूटने वाले, सड़ने वाले, गलने वाले, ऐसी चीज़ों पर कभी कभी उसको कॉस्ट प्राइस से भी सस्ते में बेचना पड़ता है. तो ऐसी कंडीशन पे उस शॉपकीपर को लॉस होता है, दैट इज CP माइनस ऑफ SP, यानी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा और सेलिंग प्राइस कम. तो उस कंडीशन पे उस शॉपकीपर को लॉस होता है. क्लियर? दिस इज द सेकेंड केस, प्रॉफिट एंड लॉस. एंड द लास्ट केस इज सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? SI इज इक्वल्स टू PR इंटू T अपॉन 100. I will discuss you about the simple interest. Before of that, about interest. What is an interest? An extra amount imposed on principal. An extra amount imposed on principal called interest. एक ऐसा अतिरिक्त पैसा जो प्रिंसिपल अमाउंट पर ज्यादा दिया जाता है, that is called interest. If you borrow a money from any lender and if you need to clear your debt, so must be necessary कि we will repay more than the amount which we have received. जो हमने उससे रिसीव किया था, जो उससे लिया था, उससे कुछ ज़्यादा पैसा हम उसको वापस करते हैं.
रिपे करते हैं, देन आवर डेप्ट इज क्लियर, तब हमारा वो डेप्ट यानी उधार क्लियर होता है। तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, वो जो ज्यादा पैसा है, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमारे अलग अलग तरीके के होते हैं। हमारे पास जो आज का टॉपिक है दैट इज सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। ये एक क्लियर कमिटमेंट होता है बिटवीन द बारोवर एंड गिवर, देने वाले और लेने वाले के बीच में एक फ्रेश कमिटमेंट होता है कि साहब आपने 1000 रुपये लिए, ओके कल कितने साल में वापस करेंगे, 2 साल में वापस करेंगे। उसने बोल दिया सर 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे लेंगे। आपने कहा ओके। अब जब 2 साल के बाद आप उस पैसे को वापस करते हैं तो आप कितना वापस करते हैं, देखिए प्रिंसिपल अमाउंट 1000, 1000 रुपये आपने उससे लिया, कमिटमेंट किया था 10% पर एनम का, 10% का, टाइम कितना था 2 साल के लिए, 2 ईयर्स के लिए आपने लिया अपॉन 100, ये कैंसल आउट हो गया 2 and 2 0, ये 200 रुपीज एज इंटरेस्ट, ये ब्याज के रूप में 200 रुपये आपको देना है। व्हेन यू रिटर्न द अमाउंट दैट इज प्रिंसिपल प्लस SI, जब इसको आप वापस करेंगे दैट इज कॉल्ड अमाउंट। ये वो अमाउंट है जो आपने प्रिंसिपल लिया था वो, और प्लस ये SI। प्रिंसिपल कितना लिया था आपने 1000 रुपये, 200 रुपये आपका इंटरेस्ट, कुल मिलाकर के 1200। मीन्स दैट इफ यू वांट टू क्लियर योर डेट then you repay rupees of 1200. Okay, now the next is, now the topic is speed, distance and time. So अब हम लोग बात करेंगे स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम की। एक नॉर्मली आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये एक बेसिक फॉर्मूला है स्पीड फाइंड आउट करने के लिए। स्पीड इज इक्वल्स टू ट्रेवल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। एक डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जितना टाइम लगा, इफ यू फाइंड आउट देयर रेशियोज दैट्स इक्वल टू स्पीड। आज हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्पीड्स की। तो पहले वो हमारे पास सबसे फर्स्ट टॉपिक है रिलेटिव स्पीड्स। रिलेटिव स्पीड्स क्या होता है? अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो किसी भी एक सिंगल मूविंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस किया। आज हम लोग बात करेंगे डिफरेंट केसेस की। सपोज कर लीजिए 2 ट्रेन्स हैं और पहली वाली ट्रेन एक स्पीड से रनिंग आउट कर रही है। ये फर्स्ट ट्रेन ए है और इसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है, इससे ये रनिंग कर रही है। एक दूसरी ट्रेन बी है, ये हमारी 15 किलोमीटर पर आवर से रन कर रही है। अब ये दोनों ट्रेनें स्पीड पे रन कर रही हैं 10 किलोमीटर पर आवर से और 15 किलोमीटर पर आवर से। पहला केस हमारा ये है इन द सेम डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन। सेकेंड केस हम लोग बात करेंगे अपोजिट डायरेक्शन की। एक ट्रेन हमारी इधर 10 किलोमीटर पर आवर से एंड दिस इज इन दिस साइड 15 किलोमीटर पर आवर से। अब इन दोनों ट्रेनों को जब वो सेम डायरेक्शंस पर मूव कर रही हैं तब हमारी रिलेटिव स्पीड्स क्या होगी, और जब वो अपोजिट डायरेक्शंस पे मूव कर रही हैं तब उनकी रिलेटिव स्पीड्स क्या होगी। फैक्ट है कि जब ये दोनों ट्रेन्स एक साथ एक ही डायरेक्शंस पर मूव कर रही होंगी तो फैक्ट है कि इस ट्रेन की स्पीड ज़्यादा है 15 किलोमीटर पर आवर और पहले वाली ट्रेन की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है। इसलिए जो इनकी रिजल्टेंट स्पीड आई, डिफरेंसेस ऑफ दीज टू स्पीड 15 - 10 इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। यानी इनका जो रिजल्टेंट हमको मिलेगा वो 5 किलोमीटर पर आवर का मिलेगा। इसी की जगह पर ये दोनों स्पीड्स अपोजिट डायरेक्शंस पे हैं और इनका जो रिजल्टेंट मिला वो 25 किलोमीटर पर आवर का मिला। दोनों ही ट्रेन एक दूसरे को पार करने में अपनी अपनी स्पीड से मूव करेंगी। दिस ट्रेन इज मूविंग 10 किलोमीटर पर आवर in this direction and this train B is moving 15 kilometer per hour in their opposite direction, so their speeds will add and they are running 25 kilometer per hour। ये तो केस हुआ 2 मूविंग ट्रेन्स का। अब मान लीजिए कोई भी एक ट्रेन है और वो ट्रेन किसी भी एक ब्रिज को क्रॉस करती है, एक पुल को क्रॉस करती है, या एक ट्रेन है और वो किसी भी एक ट्री को क्रॉस करती है या किसी भी एक लाइट पोल को क्रॉस करती है। तो ऐसी कंडीशंस पर क्या स्पीड होती है, डिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर ये ट्रेन, मान लीजिए इस ट्रेन की लंबाई 100 मीटर है और ये ट्रेन 150 मीटर एक लंबे ब्रिज को या किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, तो उस कंडीशन पे इफेक्ट तो स्पीड पे कोई नहीं पड़ेगा, क्योंकि
ये जो प्लेटफॉर्म है ये स्टेबल है, ये तो मूव नहीं कर रहा, ये स्टेबल है। यहाँ पर जो इफेक्ट पड़ेगा वो इनकी डिस्टेंस पे पड़ेगा। इस केसेस में व्हेन अ मूविंग ट्रेन इज पासिंग अ प्लेटफॉर्म और ब्रिज, देन टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगी वो 100 प्लस 150 यानी 250 मीटर। 100 मीटर उस ट्रेन की डिस्टेंस यानी लेंथ और 150 मीटर उस ब्रिज की या प्लेटफॉर्म की लेंथ। तो जो टोटल लेंथ हो जाएगी यानी टोटल डिस्टेंस हो जाएगी वो 250 मीटर। क्लियर? नेक्स्ट इज व्हेन दिस सेम ट्रेन इज पासिंग अ ट्री और अ पोल। एक्चुअली इन कंपैरिजन टू द प्लेटफॉर्म एंड ब्रिज, द ब्रेथ ऑफ ट्री और पोल इज अबाउट टू नेग्लिजिबल। अगर हम कंपेयर करें प्लेटफॉर्म से, किसी ब्रिज से, किसी टनल से, केव से, तो उसकी कंपैरिजन में ये जो ट्री की ब्रेथ होती है, चौड़ाई होती है, या एक लाइट पोल की जो चौड़ाई होती है वो अबाउट टू नेग्लिजिबल है, लगभग ना के समान होती है। इसलिए जब भी कभी ये मूविंग ट्रेन किसी भी ट्री को या किसी लाइट पोल को पास करती है तो उसकी डिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। द लेंथ ऑफ अ ट्रेन इज कॉल्ड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन। ओके, तो ये हमारा सेकेंड टॉपिक हुआ, व्हेन द ट्रेन इज पासिंग ओवर द ब्रिज और फ्रॉम द ट्री और पोल। नेक्स्ट टॉपिक इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड होती है औसतन चाल। सपोज कर लीजिए हमको यहाँ से दिल्ली जाना है और दिल्ली की जो टोटल डिस्टेंस है वो है 400 किलोमीटर। अब इस 400 किलोमीटर की डिस्टेंस को हमने अलग अलग व्हीकल से तैयार कंप्लीट किया। जैसे हमने फर्स्ट 100 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो बाई ट्रेन तैयार किया, कंप्लीट किया। तो जो 100 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो 1 आवर में बाई ट्रेन कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट 100 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो बाई कार ट्रेवल कर लिया 2 आवर्स में। नेक्स्ट 200 किलोमीटर का बाई टैक्सी कर लिया, इसमें हमको 5 आवर्स लगे। तो अलग अलग डिस्टेंसेस को ट्रेवल करने में अलग अलग तरीके का टाइम लगा, क्योंकि हमने अलग अलग डिस्टेंसेस को अलग अलग व्हीकल से कंप्लीट किया। टोटल 400 किलोमीटर के डिस्टेंस हमने पहले 1 आवर्स में, नेक्स्ट 2 आवर्स में, नेक्स्ट 5 आवर्स में। तो जो टोटल टाइम लगा वो 1 आवर्स, 2 आवर्स एंड 5 आवर्स। एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी चली? 100 प्लस 100 प्लस 200 यानी टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 400 किलोमीटर। टोटल टाइम कितना लगा? 1 आवर्स, 2 आवर्स एंड 5 आवर्स बिकम्स 8 आवर्स। टोटल टाइम्स कितना लगा? 8 आवर्स का। 8 5 जा 40 यानी 50 किलोमीटर पर आवर। तो उस पर्सन ने ऑन एवरेज 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपनी इस टोटल 400 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल किया। दिस इज कॉल्ड एवरेज स्पीड, औसतन चाल। हालांकि ऐसा एग्जैक्ट था नहीं, पहले जो उसने 100 किलोमीटर की चाल जो कंप्लीट डिस्टेंस कंप्लीट करी 1 आवर में, यानी उसमें जो उसकी स्पीड थी वो 100 की थी। अगली जो 100 किलोमीटर की स्पीड डिस्टेंस तय करी वो 2 आवर्स में यानी 50 किलोमीटर की। तो ये स्पीड अलग अलग थी, लेकिन हम लोगों ने जब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया और उसको ऑन एवरेज फाइंड आउट किया, देन वी गेट 50 किलोमीटर पर आवर ऑन एवरेज। ओके, नाउ द यूनिट ऑफ स्पीड। यूनिट ऑफ स्पीड इज डिपेंड अपॉन द यूनिट ऑफ डिस्टेंस अपॉन यूनिट ऑफ टाइम, बिकॉज द स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो द यूनिट इज, अगर डिस्टेंस मीटर में है और टाइम सेकेंड में है, देन द यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। और अगर डिस्टेंस किलोमीटर में है, टाइम आवर में है, देन द स्पीड यूनिट ऑफ स्पीड इज किलोमीटर पर आवर। ओके, तो दिस इज द सेकेंड टॉपिक एज speed, distance and time. So today we have completed 2 topics. First, ratio and proportion, and the second is speed, distance and time. Okay, now see the video and enjoy. Thank you.